Okay. It's okay, Manyata. Actually, your name was visible to me. You can lower your hand, bache. Good morning, ma'am. Good morning. A very good morning to all of you. मैम हम चैप्टर 2 की कॉपी सेंड कर सकते हैं? Not today, beta, because my 10 notebooks are still left. So I will send you the message. After that only you will send. Okay? Okay, ma'am. So fine, we are starting with the last question that we were doing yesterday. Uska graph दिया था. Only the shading of the triangular coordinates of the triangle I will explain once again. We were having the two equations. This is your chapter number 3, exercise 3.2, question number 7. This we are repeating. The graph. First equation we are having x minus y plus 1 is equal to 0. And the second equation 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. We had made its graph. We had find out the solution sets. So 0, 1, 1, 2, 3. And for this, when x is 0, y is 6. When y is 0, x is 4. And one more solution of here we will be having 2, 3. So after this, we had drawn its graph also. You are to use the graph paper for this. You will not make it directly on your notebook. You will make it on your graph paper and then you will paste that paper in your notebook. On this side, we are having 1, then 2, 3, 4, 5, 6, and 7. This is y, o, y dash, x dash, o, and x scale. X-axis 1 to 1 unit. Same for the y-axis also. So ये आपने हर ग्राफ में इतना काम आपने करना ही करना है. Now we will plot the graph. For the first equation, when x is 0, y is 1. So this is the point 0, 1. And the second over here we are having when x is minus 1, then this is 0. You can draw a line from 2 points only and rest of the points will lie on this line. This point will be 1, 2 and this will be 2, 3. And this is the equation x minus y plus 1 is equal to 0. Now the second equation, we are having x2 y 6 and 4, 0. तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं दिया है. You are to take the proper distance. तो ये आपका जो इंटरसेक्ट करेंगे that will be 0.2, 3. यहाँ से मेन आपका जो पार्ट है वो शुरू हो रहा है. हमें उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस. एक लाइन मेरी ये माइनस y प्लस 1, दूसरी लाइन मेरी ये है 3x प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो फॉर्म्ड बाय मीन्स एक ये लाइन है आपका इतना पार्ट, एक ये पार्ट है आपका, एंड द एक्स एक्सिस मेरी ये है. तो इसके बीच में बेशक ये वाइट वाली लाइन भी आई, आपकी ट्रायंगल नहीं बनेगी अगर आप इसको ऐसे ले लेते क्वाड्रिलेटरल. तो आपने क्या करना है, इसको इग्नोर करोगे कि ये है ही नहीं है क्योंकि ये लाइन
है एक ये लाइन है और ये एक्स है, तो आपका जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है दिस, चाहे वो नेगेटिव साइड पे भी जा रहा है, इवन देन यू आर टू टेक दैट. नाउ वी आर टू राइट डाउन द vertices, determine the vertices of the triangle formed by these lines. So A, B and C is the required triangle. Now we are to write down its vertices. So vertex A, coordinates are 2, 3, जहाँ पे दोनों lines आपकी intersect कर रही हैं. This is the solution of these two lines also. B is -1, 0 and vertex C is 4, 0. So these are the three vertices of the triangle, and also we have shaded the triangular region. In case, यहाँ पे वैसे question में उन्होंने पूछा नहीं है, but in case if it is asked in the question that find the area of this triangle ABC, then area of triangle half in base into altitude. बेस में आप ये नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लोगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5. एंड देन हाइट में आप लेके चलोगे, परपेंडिकुलर हाइट हम हमेशा लेके चलते हैं. तो जब आप यहाँ से ये डिस्टेंस काउंट करोगे, यहाँ पे आपके 1, 2 एंड 3 बॉक्सेस बने. सो दिस विल बी 3. हाफ इंटू 5 यूनिट्स है यहाँ पे आपका, इंटू दिस 3, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है, तो दैट इज 15/2, दैट इज 7.5 स्क्वायर यूनिट्स. So if any doubt is there, then you can ask, you can raise your hand and you can ask your doubt if any kind of doubt is there. Okay, fine. Then we are going to the next topic, that is your exercise 3.3. अब ये जो हम कर रहे हैं, this is the algebraic method of solving the linear equations. Just a moment, Amrit. Yes. Amrit, you can unmute. मैं कह If रहा था no doubt कि is there, then lower your hand. हमें अनम्यूट की हाँ ऑप्शन दे दो मैम, साथ साथ डाउट क्लियर होते रहेंगे. Pardon? मैम हमें अनम्यूट की ऑप्शन दे दो मैम, साथ साथ डाउट क्लियर होते रहेंगे, नहीं तो. Okay. Then I shouldn't get any kind of disturbance. Okay, bache, I have given. Now you can ask your doubts in between. If any doubt is there in this question, then you can ask. Otherwise, I am moving on to the next topic. Algebraic method of solving pair of linear equations in two variables. अब इसमें जो है ये जो हमने मेथड किया था, this one is the graphical method of solving the two equations. जहाँ पे दो equations के आपके graphs intersect करते हैं, that is your particular solution of that two equations. तो ये आपका graphical method था. अब हम algebraic method कर रहे हैं. Algebraic method में we are having further 3 methods हैं हमारे पास. उन तीनों में से हम कोई भी method use कर सकते हैं. और अगर क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि we are to use this specific method only, फिर हमें जो उसने method कहा है वही use करना. Graphical method we had done, and now we are having the algebraic method. इसमें we are having 3 types of method. First आज हम करेंगे substitution method.
सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में आप लिख लेते हो और फिर दूसरी इक्वेशन में इसको पुट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें हम कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करके वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड जो हैं इन पे बेस्ड आपकी 3 एक्सरसाइजेज हैं आगे। फर्स्ट हम ये वाला मेथड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेम से ही पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया था इस पे बेस्ड, और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। दिस इज योर नॉट एग्जांपल, दिस इज योर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में ले रही हूँ। वी विल सॉल्व दिस यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले ये देखो है क्या। मुझे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन मुझे गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, we find out one variable, we write down one variable in terms of other। दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप क्या करोगे, एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ, आई राइट डाउन x इन टर्म्स ऑफ y। तो x को y की टर्म्स में लिखने के लिए व्हाट आई हैड डन, आई हैव ब्रॉट दिस माइनस y टू द राइट हैंड साइड। यहाँ पे नेगेटिव साइन था, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वाली x की जो वैल्यू है वो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इस इक्वेशन। तो मेथड क्या है आपका, यहाँ पे जो दो आपको इक्वेशंस गिवन है उनमें से एक इक्वेशन को यूज करो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लो। अब इसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, सेम इक्वेशन में नहीं पुट करोगे आप, अदरवाइज आपका रिजल्ट जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, जिस इक्वेशन से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है सेकेंड इक्वेशन में आप उसको पुट करो। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे देती हूँ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने नहीं छेड़ा, ये एज इट इज लिखी है। सेकेंड इक्वेशन में वेरिएबल x को आई हैव रिटन इन द टर्म्स ऑफ y। नाउ दिस वैल्यू ऑफ x आई विल पुट इन द अदर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो यूजिंग 2 को मैं पुट कर रही हूँ इन 1। अब x जो है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, दिस इज 14 प्लस y। ये x की जगह आ गया आपका, प्लस y इक्वल टू 14 एज इट इज। मैम 4 प्लस वाई नहीं है मैम, 4 प्लस वाई होगा। यस इट इज 4 प्लस y। सो x प्लस वाई इक्वल टू 14, यहाँ पे आ गया 4 प्लस y इज इक्वल टू 14। इस x को मैंने इस वैल्यू से रिप्लेस कर, प्लस y इक्वल टू 14 आपका एज इट इज। नाउ वी विल ऐड दिस। अब ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल रह गया, तो हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ रख लेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ सॉल्व कर लेंगे। प्लस 4 आई विल टेक इट टू द राइट हैंड साइड, दिस विल बिकम माइनस 4 दैट इज 10। यहाँ पे y प्लस y कितना हो जाएगा आपका 2y। सो y इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। अब ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ मैं लिख दूंगी पुट y इज इक्वल टू 5 in equation 2। So x is equal to 4 plus y की जगह 5, तो x is equal to 9। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। So I have solved this equation, they solved this pair of linear equations by the substitution method। First दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख दो, देन इसे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करोगे। यू आर टू पुट दिस वैल्यू इन द अदर इक्वेशन, उसी में नहीं पुट करोगे जिससे ये वैल्यू निकाली। सो दूसरी में पुट करके आपके पास जो वेरिएबल है y आ गया, y की ये वैल्यू फिर से इसमें पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। सेकेंड पार्ट में देखो, फर्स्ट इक्वेशन तो मुझे सिंपल गिवन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सेकेंड जो इक्वेशन मुझे गिवन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो इसको करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप सेकेंड इक्वेशन को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। s माइनस टी
is equal to 3 and the second equation I'm having s by 3 plus t by 2 is equal to 6. अब यहाँ से अगेन मेरे पास ये इक्वेशन मुझे सिंपल दिख रही है, तो यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करती हूँ. So this gives me s is equal to 3 plus t. I will take it as the first equation and this one as the second equation. One in equation 2 using equation 1 equation 2 put कर देंगे 3 plus t s को रिप्लेस किया by 3 as it is plus t by 2 is equal to 6 as it is. अब हम क्या करेंगे, इसको LCM ले लेंगे. LCM 3 और 2 का आपका, क्योंकि दोनों को प्राइम्स हैं, तो दैट विल बी 6. जब आपका LCM को प्राइम्स का लेके आप चलते हो तो ये आपके क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो वी विल बी हैविंग 2 into 3 plus p. ये 3 plus p जो है आपका वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस साइन एज इट इज 3 into t that is equal to 6. अब ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई आल्सो वी विल ओपन द ब्रैकेट. सो 2 into 6 plus 2t plus 3t is equal to 36. अब ये मेरा t की टर्म्स में बन गया यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई मैं करूंगी तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ t और ये प्लस 6 मैं इधर ले जाऊंगी. So 2t plus 3t is 5t. This is equal to 36 minus 6 that is 30. 5t equal to 30 यानी कि t is equal to 5 6 are 30. तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास 6. अब ये t की वैल्यू मैं पुट करूंगी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1. So put t is equal to 6 in equation 1. आप चाहो तो यहाँ मिल जाती है, तो आई एम पुटिंग इन दिस. t is equal to 6 जब मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो 3 plus 6 s मेरे पास आ जाएगा 9. So I have again solved this for s and t is equal to 6. So this is your substitution method. Same. एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में लिख लो. ये वाली वैल्यू अदर इक्वेशन में पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो. वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू दोबारा से पुट करोगे, गेट योर आंसर. आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज कुछ भी करना इन क्वेश्चंस में, सिर्फ यही कंसेप्ट है. कोई Excuse me, ma'am. हाँ जी Excuse me. मैम आपका मैम बोलो तो बहुत है मैम, कुछ दिख नहीं रहा मैम. ओके 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 जस्ट अ मोमेंट, जस्ट वेट. मैम लैपटॉप में वैसे समझा दो मैम, आपने रेज ही करते हुए दिखा ही नहीं हमें. वेट Yes, ma'am. अ मिनट. Yes, ma'am. Is the board visible now, बच्चे? No, ma'am. No, ma'am. Okay, wait. I'm just restarting it, बच्चे. You rejoin all of you.